Uh, the scenario is that this is a simulated patient task that will assess you are the following domains: information gathering, patient safety, communication skills, and applied clinical knowledge. You are a consultant gynecologist working in a tertiary care hospital and are appointed these days in the antenatal outdoor where you see the patient Mrs. ABC, who is 30 years old lady, married for 1 year. She is a teacher by profession. She has been referred to you by a GP as she is known case of SLE and wants to conceive now. She is concerned for her future pregnancy and its outcome and wants pre-pregnancy advice from you. Your task is to take a relevant history, answer the patient concerns while discussing the plan of care with the patient once she conceives. You have 10 minutes to complete the task. चलो जी, shall we start? Yes, sir. चलो जी, बिस्मिल्लाह करो. Bismillah. After introduction, I will greet the patient. I want to confirm her demographics of the patient. As I will confirm her educational and occupational status. And then now, as she is presented, she is referred case from the GP, and she needs the preconception counseling. I want to make sure about she is married since 1 year. I want to make sure that when what since how long she has been in this she is when she was diagnosed as SLE, what were the signs and symptoms, and what are the conditions when she was first went to the general physician, and what investigations were done at that time, and how she was diagnosed, since how long she has been diagnosed as with the SLE, and what treatment she is currently using now. After this detailed discussion of the current situation, and okay. After the detailed discussion, I'm going to make sure about her last menstrual period and her cycle is regular or not, or she is having any current complaint, any current issue. After uh, okay, and I also want to confirm when she visited the consultant for the disease last time. Okay. See, uh, okay. Hmm. After that, I also would like to share, after that, I would like to share her with the effect of the disease on this patient and what are the effect of the pregnancy on this disease. अच्छा, okay. Okay. After that, I would like to inquire detailed inquiry about her medications, what treatment she is on, as is she is using some NSAIDs or any other medication that need to be altered. Mm-hmm. And I will also is she I will also do her risk assessment of the patient with SLE, as she is known case of the SLE since how long, Okay. and what is and currently what is her current status, she is having any complaint or not, is her disease controlled on the current medication she is using. Mm-hmm. Okay. After the compile up information, I would like to, sir, I want to know about the medication she is using now. Okay. बेटा आपने ये हैव यू रेड द टास्क? जी सर. हैव यू रेड द टास्क? दोबारा पढ़ो जरा. जो आपको टास्क दी गई है, क्या आपने वो पढ़ी है? जी सर. फिर दोबारा पढ़िएगा प्लीज. This is a simulated patient task. का क्या मतलब होता है? व्हाट Mutual यू. discussion. तो अभी तक जितनी आपने मुझसे ये गुफ्तगू की, इसमें कहाँ से थी ये
simulated patient. जी सर। और इसी में यू हैव ऑलमोस्ट हैड कोई 5 मिनट तो हमारे इसी में गुजर गए। जी सर। फिर इससे इसका क्या मतलब है? एग्जामिनर तो नहीं रोकेगा। Why would examiner stop you? Once you, अगर आप उसी को टास्क को ही अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे हैं और आके अपनी इस तरह मोनोलॉग स्टार्ट कर दिए, तो फिर तो ही विल नॉट स्टॉप। और इसमें आपको स्टेशन के अंदर मेरा ख्याल है कि वो 1 या 2 नंबर भी, इवन 0 नंबर भी देके आपको आगे भेज सकते हैं। आपको नहीं मैं समझ? नहीं डॉक्टर साहब, आपको समझ नहीं आई कि मेरी, यू डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आई गॉट इट नाउ। यू गॉट इट नाउ। तो इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जब आपने किसी भी स्टेशन पे जाना है, यू हैव टू सी कि वो नॉर्मली 3 किस्म के होते हैं स्टेशन। जिसमें नंबर 1, एक में आपने इंटरेक्शन करनी है विद जो एग्जामिनर बैठा हुआ है। वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसके जवाब दोगे। एक वो है जिसके अंदर एक रोल प्लेयर बैठा हुआ है, जिससे आपने क्वेश्चंस एग्जामिनर से नहीं बात करनी नॉर्मली। अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो वो एग्जामिनर दे देगा, अदरवाइज विल टॉक टू द रोल प्लेयर। थर्ड होती है कि जिसमें आपने कोई जाके कोई स्किल परफॉर्म करनी है या कुछ और करनी है। वो आप उस पर इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं और वो सामने कोई जो भी चीज़ लिखी होती है, पढ़ी होती है, उसके ऊपर आपने वो डेमोस्ट्रेट करके दिखानी होती है। लास्ट में एक में जो हमारे अभी स्टेशंस हैं, एक ऑप्स का आता है और एक प्रॉब्ली गायनी का वो करने लगे हैं, जिसके अंदर उन्होंने आपको उसके ऊपर एक उसके ए पार्ट के ऊपर आपने उसकी हिस्ट्री लेनी है और बी पार्ट के ऊपर आपने उसका एग्जामिनेशन करना है। स्टेशन। और ये सारी चीज़ों के लिए आपको यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और ये इंस्ट्रक्शन अगर आपके पास लिखी हुई है कि जी दिस सिमुलेटेड पेशेंट, उसमें आप जाके खुद तकरीर स्टार्ट कर दोगे कि जी आई विल टेक द बायोडेटा स्टार्ट, आपने इस तरह किया, फिर तो वो तो एग्जामिनर भी चुप रहेगा और वो रोल प्लेयर भी चुप रहेगा, और दोनों को इंस्ट्रक्शंस होगी जब तक आपसे जवाब ना, सवाल ना पूछे आपको। सॉरी, इधर आपको एड्रेस ना किया गया, फिर आप भी चुप करके बैठे रहो, और जब घंटी बज जाएगी तो फिर अगला चला जाएगा। सो वी विल स्टार्ट दिस अगेन। जी सर। लेकिन याद रखना, एग्जाम में आपको दोबारा इस तरह सेकंड चांस नहीं मिलेगा। जी सर। आई विल। चलो जी, दोबारा से बिस्मिल्लाह करते हैं। टाइम स्टार्ट्स नाउ, फिर से करो। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज डॉक्टर बेनजीर। व्हाट इज योर नेम? आयशा। Aisha, are you a are you educated person? यस आई एम अ टीचर। You are a teacher. You have a good occupational status as well. I want to confirm your last menstrual period. इट्स अबाउट 10 days बैक। 10 days back. Okay. Is it regular? हाँ जी, इट्स रेगुलर। Yes. Okay. I want to is up you are referred. You have sent me the state that you are referred by a GP as you are known case of systemic lupus erythematosus, SLE. Do you know that? यस। Yes. Okay. Since how long you have been this disease? 4 years। 4 years. Okay. Uh, how you come to know about this disease? Means. I had a rash and I had a fever, so I went to a doctor. Then they did couple of tests about Mm, 4 years back, and then they told me that I had SLE. okay. I see. Before marriage, you were diagnosed as a case of SLE. जी डॉक्टर साहब, I've been diagnosed for last 4 years. Okay. Uh, are you are currently using any medication for this disease? Yes, I am. Uh, may I know the names of those medications?
I am on prednisolone. Hmm. I am Okay. on HCQ, Okay. and there is also one more, and Sorry. The name of third drug is ramipril. Sorry, name of prednisolone, I'm ACQN, on prednisolone, HCQ, disease, and ramipril. ramipril. Okay. Hmm. Is your disease controlled on these medications? Are you are having any Yes. symptoms or any problem? No, I'm fine. Okay. When you visited your consultant last time? About 2 weeks back. Okay, 2 weeks back. You are were you having any complaint? So you have visited your consultant? No, this it was my routine visit, and I wanted to get pregnant. Okay. Hmm. Okay. Uh, s- uh, do you have some investigations of your disease with you now? They did some tests, again. I don't have a test with me at the moment. Okay. So Miss Aisha, you are as you are diagnosed case of SLE. Mm-hmm. You are taking some medications. Before going into the deeper discussion of the pregnancy, I would like to do some of your investigations to know your current status of the disease. Yes, Mm-hmm. that includes your general health with the CBC and CBC count. I would like to perform some investigations like CBC, your renal profile test, as your renal profile test, urine and yeah, and other medication, other tests such as antibody titers. As Antibiotic. you Okay. antibodies and other antibody titers, which includes Ripus antibodies and the cardiolipin antibody and other than the anti-DSGN antibody. Yeah, bye. After receiving these investigations, I will counsel you about the disease severity of the disease. Is it controlled or not? As you are not having any symptoms, it means it is almost well controlled. I will make sure the confirmation of the controlled disease by these investigations. If these are the all these investigations will be normal, we will advise you. We will also, as you are using prednisolone and ACQ and Remiprin and ACQ. We will also want to do your systemic well-being as no systemic well-being with your vital monitorings and knowing about your ECG. If all these investigations will be normal, you will can go for the conceiving, and we will give you on. We will alter some medications to stop, as you can use ACQ and Remipril, and we will drop out some medications as prednisone, and we will add folic acid with your treatment. Are you getting my points? Okay. Or do you have Yes. any questions regarding this all? Means when can I get pregnant? Yeah. You, you okay? After these investigations are within normal limits and you are not having any, so Let's you can. suppose these investigations comes back and they're normal. Okay, then when should I Oh, get pregnant? you can try for pregnancy if all these are within normal they are in normal limits, and you will also continue to use folic acid and you will get pregnant. You can try conceiving. You will try to conceive. After conceiving, you have to get care of some things as you will get as you get pregnant. There are some complications that can occur in the patients with the SLE. These complications might be preeclampsia, IUGR, miscarriages, and preterm labor. These all are the complications that can occur in patients with the SLE. So you should be very vigilant about these things, and also you will be very vigilant about your investigations and monitoring. And we will continue. When you get pregnant, we will manage you through the multidisciplinary approach, including your consultant, GP for the SLE from you are getting treatment, and a senior gynecologist, obstetricians.
हम्म। obstetricians as well. Okay, and when you get pregnant, you after you will have dating scan at 7 to 8 weeks, when where your cardiac fetal cardiac activity will be done, and at that time, and each visit we will monitor you and send and do investigations of such as renal profile and urine protein urea and other investigations, and ultrasounds for the fetal well-being as well. If it is normal in 7 to 8 weeks, after that you will also in the next visit you will also come for the fetal anomaly scan at 20 weeks of the gestation. We will also do your What checkup. about my previous medication, Dr. Sabash? What would The happen to them when previous once I'm pregnant? Yes, yes, you are using some medications such as ACQ, Ramipril, and the prednisolone. We will stop if your disease is well controlled. After doing all the investigations, we will drop out your prednisolone. You can continue Ramipril and ACQ. We will also want to add some medications with you as apart from the folic acid in the from the time of the prior to the conception up to the 3 months of the conception. We will also add low molecular weight heparin with your disease with your uh, prophylactic dose. As you are not having any complaint, not any, do you have any prolonged embolization or any problem with your disease? You are all okay. You will continue these two medications, Up ACQ to and the Remdesivir. point of, These are safe in pregnancy. okay, what are the risks to my baby because of this disease? Yes, because of this disease, you can baby can with a heavy heart. I'm saying that not all pregnancies, but few pregnancies might end in the miscarriages. IUGR can occur, and preterm labor can cause preterm labor can also occur. Anything else? Other than this, you can also develop the preeclampsia, some anomalies, Okay. raised blood pressure. These are the complications with these pregnancies. Any other thing you want to know? Any other thing you want to ask about your condition or any other query about your pregnancy? Sure. I think ये हमारे 10 minutes complete हो गया. तो अब आपका ख्याल है कि आपने कैसा किया? Sir, I was a bit confused. It was my first case ever I'm presenting online, so I'm sure I've not done so good, but I have tried. नहीं, you have not done that bad. I'm still a trainee, sir, and I want to learn about how to present these cases, and I'm very inspired by. नहीं बेटा, ये this is all about practice and we are doing practice, so it's not about the training on this part. लेकिन ये तो continuously चलती रहेगी till you go and appear in your exam even after that. Yes, sir. अब the number one component about this, let's forget about the first part जो हो गया. Secondly, Yes, sir. देखो बेटा, she's been, अब आपके पास आई है, did you take history कि how long she's been married for? What does her husband do? And if she's been married for, let's suppose जो उसमें history में थी for about a year or so, so जी जी. are they using any contraception or they've been trying or they not be trying? हम्म, सही. ये important है कि नहीं है? जी सर, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है इन दिस डे. अगर वो पेशेंट है और उसका हस्बैंड ही इधर नहीं है, let's suppose his हम्म. husband lives in Dubai or somewhere else, and he's gonna come back after a year or so, फिर कहानी चेंज हो जाती है, या वो साथ रहता है तो फिर कहानी बदल जाती है. नंबर टू, अगर लेट्स सपोज मैं कहता है कि जी उनकी शादी को 2 साल हो गए एंड दे हैवंट कंसीव्ड एज सच एंड दे बीन ट्राइंग, फिर थोड़ा सा सिनारियो चेंज हो जाता है. अगर मैंने कहता हूँ जो इसमें एक्चुअली था कि दे मैरिड फॉर 1 year, पर अपना कॉन्ट्रसेप्शन बैरियर मेथड अप टिल नाउ, अब नाउ दे डिसाइडेड कि जी के हम कंसीव करेंगे, फिर सिनारियो चेंज हो जाता जी सर. है. इजंट दैट? जी सर. आपका सारा फोकस जो था इस सारे सिनारियो में एसएलई पढ़ के एसएलई पे चला गया. ठीक. दूसरा, जी. आपने जब वो एसएलई का पूछा, उसने बता दिया जी मुझे 4 साल हो गए ये हम कर रहे हैं.
डिड यू आस्किंग कि प्रीवियसली वो कौन सी मेडिकेशन लेती थी, क्या वो मेथोट्रेक्सेट पे थी, नहीं थी, या बाकी सो जो मेडिकेशन है क्या उस पे वो थी या नहीं थी, और वो जब तक थी कितना अरसा हो गया है उसको सिर्फ ये अपनी क्या कहते हैं प्रेडनिसोलोन, HCQ, और जो मेरा ख्याल है एक हमारा वो एस इनहिबिटर है, वो इम्पोर्टेंट था। उसके बाद क्या आपने ड्यूरिंग दिस पूछा कि जी आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है अनकंट्रोल्ड है, वो किस सिनारियो में है, क्योंकि ये तो अभी आई है प्री प्रेगनेंसी के लिए। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि अगर वो फॉलिक एसिड ले रही है कि नहीं ले रही है, अगर ले रही है तो कब तक ले रही है। जो जहाँ तक मुझे याद है SLE का एटलीस्ट दे हैव टू बी ऑन दीज मेडिकेशन और कंट्रोल्ड, जिसमें एडमिशन नहीं है फॉर द लास्ट 6 मंथ्स, विद कोई और नेफ्रोलॉजी की या कोई और एम्बोलिज्म की उसको हिस्ट्री ना हो, तो देन शी कैन गेट प्रेग्नेंट। शी हैज टू बी ऑन folic acid for the last 3 months before they can start conceiving। और इसमें अगर उसका ANA पॉजिटिव है तो फिर देन शी कैन रिपोर्ट ऑन लोप्रिन अर्लियर, और जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो फिर वो लोप्रिन प्लस क्लेक्सिन का रोल कितना आ जाता प्री प्रेगनेंसी के लिए। जी सर। अदर देन दैट बाकी जो है, जब वो प्रेग्नेंट होगी जब तक प्रेग्नेंट नहीं होगी ये आपकी सारी मेडिसिन इसी तरह चलती रहेंगी। वंस शी गेट्स प्रेग्नेंट वी विल कंटिन्यू HCQ, बिकॉज क्योंकि वो इस डिजीज को फ्लेयर होने से रोकता है। वी हैव टू थिंक अबाउट स्टीरॉइड्स, उसको हमने कब रोकने हैं या उसको हमने कंटिन्यू करना है अकॉर्डिंग टू हर टेस्ट एंड इन्वेस्टिगेशंस। और हमें ये एस इनहिबिटर्स जो है रिमेम्बर इसको हमने बंद करना पड़ेगा डे शी फाइंड्स आउट, और उसके ऑल्टरनेटिव में हमने क्या देना है वो करना है। और अब तो इस किस्म की जो मेरा ख्याल है जो नई वाली शायद गाइडलाइंस हैं उसमें जो हम ये है वो जो कॉल लोप्रिन जो है उसको जी 150 मिलीग्राम देते हैं, दैट मीन्स की 2 टैबलेट्स एट नाइट। उसमें कोडिंग कर देते हैं टू प्रिवेंट ऑल दिस कॉम्प्लिकेशन। रोल ऑफ क्लेक्सेन, यस इट इज़ देयर, उसमें डिस्कस करके उसको कब तक देना है क्या करना है। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थ्रोम्बोमिलिज्म, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, हर कोई इसको सिम्टम्स ऑफ ये प्री इक्लेम्शिया वो, एंड क्योंकि बेबी को भी जेनेटिकली कोई जेनेटल हार्ट डिजीज हो सकती है तो उसकी एको, एंड तीसरा अपना क्या कहते हैं आफ्टर बर्थ बच्चे की इवेलुएशन बाकी सारी होगी। नॉर्मल डिलीवरी इज ऑब्स्टेट्रिकल प्लान, लेकिन अगर बीच में कोई कॉम्प्लिकेशन होती है या प्री क्लेम्शिया या क्लेम्शिया डेवलप होता है फिर ऑब्स्टेट्रिकल रीजन के साथ जो भी होगा उस टाइम करके। तीसरा लास्ट बेट, इसकी जो विजिट्स हैं इट्स नॉट अ रूटीन एंटीनेटल विजिट जो उन्होंने बताए हुए हैं, दे विल बी काइंड ऑफ मोर फ्रीक्वेंट, और उसके सिम्टम्स बता के उसके हिसाब से हम लेके चलेंगे। सर एक जी सर। क्वेश्चन था। सर जी, जब हम जैसे कि काउंसलिंग स्टेशंस आते हैं, प्री कंसेप्शन जैसे काउंसलिंग थी, ऐसे केसेस में हमने एग्जामिनेशन मांगना होता है पेशेंट का? इन्वेस्टिगेशन तो हम लेते हैं, एग्जामिनेशन भी पूछेंगे उनसे? अगर आपको ज़रूरत है बिफोर यू कैन एडवाइज मैनेजमेंट प्लान बनाने के लिए, अगर उसकी एग्जामिनेशन की कोई चीज़ की ज़रूरत है तो आप उसको पूछ सकते हो, उसकी यस सर। फाइंडिंग्स। देखो ना एग्जामिनेशन कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे एग्जामिनेशन ज़रूरी है। सर जी, सर SLE के पेशेंट में हम जो है वो क्लैक्सिन हम तब स्टार्ट करवाएं जब हम उसका एप्ला वर्क का पॉजिटिव आता है तब करवाएं, या जी हर पेशेंट SLE का जो है उसके अंदर हम क्लैक्सिन स्टार्ट करवाएं? बेटा मेरा अपना अंदाज़ा है कि ये जिसका वर्कअप में APL पॉजिटिव होता है तो फिर वो करके उसके अपना जो कंसल्टेंट है उसके साथ बैठ के, जिस तरह मल्टी डिसिप्लिन जो भी इसका रोमेटोलॉजिस्ट है उससे बैठ के डिस्कस करके यू कैन तब तब स्टार्ट तो करानी है। अगर वो नेगेटिव आ जाता है तो फिर उसको डबल डोज ऑफ लोप्रिन पे रखेंगे, फिर शायद और हमें सर दो मॉलिक्यूलर वेट की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। बेबी का फीटल इको भी हमें हर SLE के पेशेंट में करवाना है, या जिसके अंदर एंटी रो और एंटी लाप पॉजिटिव अगर हम हमें लग रहा है तो हमें उसमें करवाना चाहिए?
मेरा ख्याल है कि सब में होगा उसका जो जेनेटिक वर्कअप है, सॉरी 20 वीक्स के ऑनवर्ड्स कार्डिक वैल्यूएशन सबकी होनी चाहिए। मैम सर मेरे ख्याल से वो एंटी रो एंटी ला वाले में पॉजिटिव होगा तो फिर ही हमने कराना है। लिखा उन्होंने ये था, लेकिन देखो ये वाले एक तो नंबर 1 टेस्ट हमारे पास पाकिस्तान में तो है नहीं, मैंने तो आज तक नहीं करवाई टू बी ऑनेस्ट। ये मुझे उनकी कॉस्ट का भी अंदाज़ा नहीं है, लेकिन मैं जो हमारे इस तरह से लिखा आ जाता है उसका 20 में डिटेल एनॉमली विद कार्डिक वैल्यूएशन एको मैं वो जरूर कराता हूँ। दैट इज ठीक है, लेकिन अगर आपको कहा कि जी ये नेगेटिव है तो चांसेस उसकी कंजेनिटल और कोई और नहीं है, फिर हम नहीं कराते। यू कैन डिफेंड दैट इन योर मैनर। और सर एक्टिव एसएलई में तो स्कोर बनता है ना वीनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म का, तो जी, इंटरमीडिएट स्कोर जैसे स्कोर 3 बनता है, तो इसमें हम 28 वीक से एंटीनेटली मतलब देते हैं ना प्रोफाइलेक्टिक डोज इसका फ्लेक्सिन का। किस चीज? नहीं नहीं, हम उसी की बेटा बात कर रहे थे कि जो लो मोलिकुलर वेट है, आई डोंट थिंक सो, इसको बेशक आप चेक कर लेना, इज नॉट एन इंडिकेशन फॉर एवरी पेशेंट। दे हम्म। डोंट रिक्वायर लो मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन उसको हमने वे आउट करना है कि जी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि अगर उसमें एपीएलएस पॉजिटिव आता है फिर तो डेफिनेटली देयर इज अ रोल। सर वैसे स्कोर बनता है एक्टिव एसएलई का स्कोर बनता है, इंटरमीडिएट स्कोर में आता है एक्टिव एसएलई का जो स्कोर्स लिखे हुए हैं टेबल्स में, तो वहां पे लिखा हुआ है कि एक्टिव एसएलई में जो है ना इसका स्कोर 3 बन रहा है। अगर तो 3 बन रहा है फिर आप उसके 28 वीक से स्टार्ट कर। जी सर। हम्म, फिर आप कर सकते हो। और रोल ऑफ कैल्शियम भी है इसमें, वही प्री क्लैम्पिया सर कोई सर अपना। अगर एसएलई फ्लेयर हुई है प्रेगनेंसी के अंदर तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे? वो तो देन इट हैज टू बी विद लिजन ऑफ क्या कहते हैं रूमेटोलॉजिस्ट, उसको बुला के उसके वर्कअप करने के बाद उसको देखने के बाद अकॉर्डिंग टू दैट यू विल डिसाइड। कई बार इतनी फ्लेयर हो जाए कि हमें टर्मिनेट करनी प्रेगनेंसी, दैट इज़ अ चांस, लेकिन रूटीनली फिर होगी। लेकिन आमतौर पे अगर 6 मंथ्स और मोर से पेशेंट इज इन रिमिशन और उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और वो मिनिमम डोज ऑफ ये HCQ और अपना स्टीरॉइड्स पे है, देन चांसेस कि उसको ड्यूरिंग दिस प्रेगनेंसी फ्लेयर होगा तो चांस कम हो जाते हैं। और उसको फर्दर कम करने के लिए यू आर गिविंग हर HCQ एज वेल। सर HCQ has, एसएलई में sorry, HCQ has to be continued. सर एसएलई में टर्मिनेशन कब ऑफर करेंगे? When this SLE is out of control या उसे प्री क्लैम्शिया या क्लैम्शिया या ऑब्स्टेट्रिकल रीजन हो जाती है। प्री एक्लेम्पसिया में भी कर देंगे? बेटा ना, नॉट प्री क्लैम्शिया, वो तो प्री क्लैम्शिया ऑब्स्टेट्रिकल आप कंडीशन के हिसाब से देखोगे ना उसके पैरामीटर्स बाकी पेशेंट की एक्लेम्पसिया। वैल्यू, वो तो ऑब्स्टेट्रिकल कॉज पे आ जाएगी ना। सर सर या फिर ल्यूपस नेफ्राइटिस का बता दें। नेफ्राइटिस अगर हो जाए? बेटा एक टाइम पे प्लीज बोलो। सर जैसे अच्छा आपने क्या बताया एक्लेम्पसिया उसकी इंडिकेशन है, और ल्यूपस नेफ्राइटिस अगर मदर का एक्टिव हो उसमें बेटा टर्मिनेशन कर देंगे? नहीं नहीं, देखो सब में नहीं करनी, लेट्स फॉरगेट अबाउट SLE। एक मरीज जो प्री क्लैम्शिया या क्लैम्शिया के साथ है उसमें जिस तरह ऑब्स्टेट्रिकल कि अगर आप उसको डिलीवर अर्ली नहीं करते या आपको यस। डिलीवर आपने टर्मिनेशन करनी है फॉर द सेक ऑफ द मदर, वो उसकी इंडिकेशन की वजह से है। यस। सही। मतलब वो फिर नॉट बिकॉज ऑफ SLE की वजह से उसको प्रीक्लेम्शिया हुआ, प्रीक्लेम्शिया की वजह से उसे क्लेम्शियल एक्सपोज हो जाता है और पेशेंट ऐसे हो जाता है कि जिसमें आपने उसको डिलीवर करना जरूरी है, देन दैट बिकम्स द रीजन। देन सर SLE इसकी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की, सर इसकी टर्मिनेशन की ना 4 इंडिकेशन है। एक तो जो आपने बताई अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन और सीवियरली अर्ली ऑनसेट प्रीएक्लेम्सिया, और दूसरी है वर्सनिंग ऑफ द रीनल फंक्शन टेस्ट, और फोर्थ है इफ द पेशेंट टेकिंग द माइकोफिनोलेट एंड साइक्लोफॉस्फेमाइड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। वो तो बेटा आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वैल्यूएशन में आ जाएगी ना, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ओके कि सर। ये तो पेशेंट आपके पास आई है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए, ठीक है। और इस ये पेशेंट मरीज वो है जिसको 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं एक मेडिकेशन लेते हुए जिसपे वो स्टेबल है, और वो सारी मेडिकेशन मेजरली दे आर सेफ इन प्रेगनेंसी, इसीलिए ये प्री प्रेगनेंसी का आ रहा है। हाँ, अगर एक मरीज आ जाता जो मेथोट्रेक्सेट पे होता और प्रेग्नेंट हो जाता
सर 8 वीक प्रेग्नेंट है एंड शी केम्स टू अस, तो फिर उसमें हम क्या करेंगे? ऐसे ली उसको है, अगर 8 वीक्स प्रेग्नेंट है और क्या है? मीथोट्रेक्सेट अगर ले रही है। एंटीनेटल पे आई है तो फर्स्ट टाइम फर्स्ट विजिट पे हम उसको कैसे मतलब वो आगे चलेंगे? देखो, अगर तो मेथोट्रेक्सेट पे है तो फिर तो मैं आई विल विद द कंडीशन, और इतनी अगर उसे मेथो की ज़रूरत है और यू अंडरस्टैंड कि मेथो की वजह से जेनेटिक बच्चे को अनॉमलीज हो सकती हैं, उसमें तो मैं उसको टर्मिनेशन ऑफर करूँ। चॉइस उसकी होगी विद द रिस्क फैक्टर्स कि जी आप ये हैं, इसका है, और ड्यूरिंग दिस, बिकॉज क्योंकि कोई वजह ही है तो आप मैथो पे हो, आपकी डिजीज के फ्लेयर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वी विल गेट अ लिएजॉन विद रूमेटोलॉजिस्ट अगेन एंड इवन रिक्वायर्ड फिजिशियन। और अगर उसके साथ उसको रीनल इश्यूज भी आज ऐड ऑन हो जाते हैं, फिर तो डेफिनेटली शी इज़ अ कैंडिडेट कि जिसको आप इसी स्टेज पे उसको टर्मिनेट कर दोगे और उसे एडवाइस करोगे जब तक कि आपकी डिजीज कंट्रोल में नहीं रहती, और 6 महीने तक नहीं रहती, और 6 महीने तक आपकी सारी दवाइयाँ बंद रहती हैं और सिर्फ आप इन मिनिमम जो डोज दवाइयों पे हो, फिर आप प्रेग्नेंट हो। फाइनल मरीज कहता है कि जी कि नहीं, मैं तो आई वुड लाइक टू टेक द रिस्क ऑफ दिस अनॉमलीज एज वेल एज आई कैन टेक द रिस्क ऑफ कि जी मेरी अपनी डिजीज भी फेल हो जाए, आई डोंट केयर, आई वुड लाइक टू कंटिन्यू। फिर आप जबरदस्ती तो टर्मिनेट नहीं करोगे, लेकिन दैट चॉइस विल बी पेशेंट। लेकिन आप इंसिस्ट या परसिस्ट जरूर करके डॉक्यूमेंट जरूर करोगे कि जी योर एडवाइस वो करो। दिस इज एग्जैक्टली द सेम थिंग। एक पेशेंट है जो आपके पास कार है एंड यू से कि इसको टर्मिनेट करना पड़ेगा पेशेंट के, जो तो टर्मिनेशन नहीं कराना चाहते, उसमें रिस्क ऑफ इनक्रीटा परक्रीटा एंड बाद में हिस्टेक्टमी डेथ, ये सारा चीज़ें वो होगी। दैट विल बी हर चॉइस ऑफ पेशेंट के जी कि मैं कह जी कि नहीं जी मैं तो कंटिन्यू करना चाहता हूँ माई बेबी। एंड देयर आर प्लेसेस लाइक दुबई वेयर दिस इवन टर्मिनेशन इज नॉट इवन अलाउड। देन आपको यू नीड टू हैव टू अंडरस्टैंड एंड टेल द पेशेंट कि ठीक है, और उसमें फिर अगर ऐसी कोई मेडिकेशन है जो हार्म करती है उसे स्टॉप कर सकते हैं या उसको रीएडजस्ट करते हैं, दैट्स द मैक्सिमम वी कैन डू विद द कंसल्टेशन की जी कि आपकी डिजीज का इसकी वजह से फ्लेयर अप एंड ये थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एसएलई की कॉम्प्लिकेशन जितनी सारी हैं वो होने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम मीथोट्रेक्सेट सर। सर साइड साइड इफेक्ट होंगे मीथोट्रेक्सेट के बच्चे पर? बेटा इसमें मेरा ख्याल है इसकी होती हैं, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन अगेन इसको चेक कर लेना। इसमें इनकी बोन की डिफॉर्मिटीज हैं और स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज कोई होती हैं, लेकिन वो फिर पिकअप भी होती हैं लेट इन द 20 वीक्स ऑनवर्ड्स के बाद। सर एसएलई किसको कहते हैं? एक्टिव एसएलई जी, मतलब एक्टिव एसएलई किसको कहते हैं जिसमें हमें एक्टिव एसिली इज द पेशेंट जो बाकी मेडिकेशन जो रूटीनली दी जाती हैं उस पे हो, जिसमें मेथोट्रेक्सेट है एक, और उसमें मैं आपको ड्रग्स का नाम एक सेकंड बता देता हूँ। हम्म, अ, जैसे मॉर्फिटेल है, मेथोट्रेक्सेट है, और ये जब ले रहे होते हैं दैट मीन्स कि दैट इज द टाइम व्हेन द पेशेंट इज ऑन, और जो उसकी एक्टिव डिजीज के जो टेस्ट हम कराते हैं जैसे कि हैं टेस्ट की भी जो दी हुई है जिसमें किडनी CCTC फंक्शन के हैं, ईएसआर है, सीआरपी है, ये कॉम्प्लीमेंट टेस्ट हैं, C50 C3 एंड C4, एंटी डीएसडीएनए एंटीबॉडीज हैं, एंटी ROSSA, एंटी LASSB एंटीबॉडीज हैं, और एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज हैं जिसमें ल्यूपस एंटीगुलेंट IgG एंड IgM है। ये सारे के सारे भी जो है ये आपके एक्सप्लेन करते हैं कि पेशेंट इज इन एक्टिव डिजीज और पेशेंट इज स्टेबल। अगर ये सारे सर पॉजिटिव होते हैं तो फिर देन you defer the pregnancy till all of these become negative, या उसकी ड्रग्स के ऊपर साथ। सर एक स्टेबल पेशेंट है, उस पे हमने सारे कौन कौन से टेस्ट करवाने हैं? एक तो बेसलाइन हो जाएंगे, उसके ये बाद बेटा जितने रीनल मैंने टेस्ट, ये जितने रीनल मैंने भी फंक्शन इस जितने मैंने आपको टेस्ट बताए ये सारे के सारे आप कराओगे। सर इसमें यूज ना हो कोई भी, कराने हैं सारे? एंटी सारे फॉस्फोलिपिड कराने। एंटीबॉडी हार्ट ब्लॉक के लिए और FGR और VT के लिए। जी,
सर ये ये सारी सिनेरियो था सर। सर अस्सलाम वालेकुम। हेलो बेटा हेलो, बात अस्सलाम वालेकुम। जी। Sir, I have been raising my hand since 2 minutes and 3 minutes. Nobody is raising hand. सबसे पहली गुजारिश ये है सबसे के, और आपसे भी सर, कि सबसे बोलें कि रेज हैंड करें ताकि सबको क्वेश्चन पूछने का मौका मिले। ऐसे ही रैंडमली सब बोल रहे हैं तो सर मौका ही नहीं मिलता बात करने का। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि इफ द पेशेंट इज ऑलरेडी ऑन द एसीक्यू और प्रेग्नेंट है, और इसके अलावा प्रेडनिसोलोन पे भी है, तो अगर उसका फ्लेयर अप ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हो जाता है तो व्हाट मेडिकेशन शी वी विल स्विच हर ऑन, लाइक अगर वो एसीक्यू पे ऑलरेडी है, प्रेडनिसोलोन पे भी है, तो tacrolimus पे और दूसरी मेडिकेशंस पे चेंज करेंगे? उसमें बेटा लाइक पहला ड्रॉग तो में लिखा हुआ है कि अगर उसका हो जाता है, फ्लैर हो जाता है, तो उसको टेक्रोलिमस पे हम स्विच ऑन कर सकते हैं, और हाई डोज अभी प्रेडनिसोलोन पे भी कर सकते हैं। यस, उसमें उसकी जो डोजेस है उसको रिड्यूस पहले करते हैं, इससे पहले कि यू ऐड ऑन सम अदर मेडिकेशन अगर जरूरत हो। लेकिन दैट हैज टू बी डन विद द लिएजन ऑफ अगेन ऑफ द रूमेटोलॉजिस्ट जो उसको ऑलरेडी ट्रीट कर रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर ये सिनेरियो एग्जाम में ही था सर। रोल प्लेयर था, उन्होंने बिठाई हुई थी एसएलई की ना। तो सर मैडम को मतलब सारा मतलब बता दिया, एंटीबॉडी सब कुछ, लेकिन सर फिर भी वो इंसिस्टेड थी कि आप और क्या मेडिकेशन देंगी एंड पे। तो सर वो मुझे बाद में पता चला कि ऐसे पेशेंट्स में मतलब क्या कैल्शियम और जो मल्टीविटामिन्स हैं वो मतलब मस्ट होती हैं। दैट इज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ प्रीक्लेम्शिया बेटा, इसलिए उसको उसमें ऐड ऑन की ठीक है कैल्शियम सर, वाली। मतलब शायद एग्जामिनर यही पूछना चाह रही थी आई थिंक। हाँ, तो इसलिए ऐसे मरीज को फिर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर से ही कैल्शियम स्टार्ट करते, दैट्स द इंडिकेशन डूइंग दैट। ठीक हो गया सर, ओके थैंक यू। Sorry, lepas अच्छा, kereta लेकिन no सर piali सर ये dia प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग वाला जो है ना, इसमें हम शुरू से ही स्टार्ट कर देंगे विटामिन डी वगैरह 10 मिलीग्राम और फोलिक एसिड 5 मिलीग्राम डेली बेसिस पे, lah. बेटा विटामिन या डी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन फॉलिक एसिड डेफिनेटली शी हैज टू टेक इट फॉर द 3 months बिफोर शी गेट्स सर ये Oh, प्रेग्नेंट। lepas ड्यूअर्स tu. में, सॉरी सर मैं ये ड्यूअर्स में जो लिखा हुआ है कि प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आए पेशेंट, तो उसको आप प्रीवियस जो रिकॉर्ड है वो भी रिव्यू करें, और उसके बाद जो है उसको एडवाइस कर दें कि आपने फोलिक एसिड लेनी है और मल्टीविटामिन आपने विटामिन डी डेली बेसिस पे लेनी होगी, कि ये शुरू से ही लेनी है या जैसे ही प्रेग्नेंट हो तो लेनी है। वो फोलिक एसिड का तो पता है 3 मंथ्स प्रायर टू द कंसेप्शन, और विटामिन सॉरी डी बेटा, मुझे कंटिन्यू, विटामिन डी कितनी और कंटिन्यू कंपल्शन है करें या कितनी हाइड्रोक्सी जरूरी है? क्लोरोक्विन। जी सर, जी जी। नहीं, देखो ना, एचसीक्यू तो कंटिन्यू होनी है इस मरीज के अंदर, और सही। उसकी डोज एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू द डिजीज और जो उसकी रिपोर्ट्स आनी है। नंबर टू, विटामिन डी का मुझे आई एम नॉट वेरी श्योर कि जी उसका कितना रोल, वो यू नीड टू। सर ये ड्यूअर्स में लिखा हुआ है कैल्शियम विटामिन डी सप्लीमेंटेशन आपने देनी है। अगर लिखा है बेटा, मुझे आई हैव टू गो बैक एंड चेक इट, क्योंकि मैं विटामिन डी का मुझे इतना नहीं पता। इसका डेफिनेटली मुझे पता है ऑफ ये फॉलिक एसिड का तो। और सर ये एंटी आर ओ एंटी एल एंटीबॉडी कितना कितना ब्लॉक करवाती हैं हार्ट अ, ब्लॉक? ये ड्यूअर्स में लिखा है 90 to 100% आर ओ, और एल ए जो है वो 86 और 68%। इनका इंसिडेंस जो है ना एंटी रो और ला का वो 3 to 4% है, और अगर ये प्रेजेंट है तो इसमें जो है ना फीटल कंजेनाइटल कार्डियक डिजीज का रिस्क जो है वो बहुत हाई होता है। बहुत हाई है, हाँ हाँ सही है। और सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी में कितना होगा अगर उसको अफेक्टेड चाइल्ड कितने होंगे? अफेक्टेड चाइल्ड ऑफ कार्डिक ऑफ का हार्ट बेटा, ब्लॉक, जी जी सर, ऑफ हार्ट ब्लॉक का। जी जी सर। देखो अगर वो अब पेशेंट चाहे तो मुझे बता दें कि अगर ये बच्चा जो है अफेक्ट हुआ है तो दूसरा बच्चे में कितने चांस हैं? मेरा सिक्सटीन ख्याल है, परसेंट 16%। हाँ, 20 का जी, मेरा अंदाजा था, यदि ये ज्यादा 16%। नया पड़ा हो, तो फिर शायद 16 हो, लेकिन आई थॉट इट वाज सर समथिंग लाइक 20%। सर एक क्वेश्चन है सर, एसएलई वाले पेशेंट्स में जो रीनल जो हम टेस्ट करवाते हैं उसमें कभी कभार जो है प्रोटीन पॉजिटिव आता है। तो सर अगर फॉर सपोज प्रेगनेंसी में हमें जो है पेशेंट ऑलरेडी जो है हाइपरटेंसिव हो,
तो हमें वहाँ प्रेगनेंसी में प्री इक्लेम्सिया का अंदाजा कब होगा, जब मतलब वो तो पेशेंट ऑलरेडी प्रोटीन उनका पॉजिटिव होता है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्री इक्लेम्सिया डेवलप कर रही है या ऑलरेडी उसका जो पहले से ही रीनल कॉम्प्रोमाइज था वही चल रहा है? बेटा, नंबर वन, जो रीनल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होगा उसको तो आप प्रेगनेंसी के लिए अलाउ ही नहीं करोगे अनलेस कैंटल उसका स्टेटस उसका ठीक हो रहा। दे आर नॉट द कैंडिडेट जिसके साथ ये रीनल नेफ्रोलॉजी वाली इश्यूज आ जाते हैं कि दे शुड गेट प्रेग्नेंट, क्योंकि उन्होंने वर्स होना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पर नंबर अगर टू, पार्ट सपोज प्रेग्नेंट होके आती है तो? फिर आप उसका एक बेसलाइन लोगे, बेसलाइन लेने के बाद फिर उसकी बाकी कंडीशन ऑफ ब्लड प्रेशर और उसकी जनरल जो एडीमा और ये सब चीज़ें जो प्रीक्लेम्शिया के सारे साइंस हैं उसको भी साथ साथ वैल्यूएट करके देखो। फिर 24 आवर यूरिन भी करोगे, उसकी वैल्यूज भी चेक करोगे। सिर्फ स्पॉट अगर पे सिर्फ वन पहले से मतलब पहले से प्रोटीन राइजिंग आ रहे हैं तो उसमें हम अंदाजा लगाएंगे प्री इक्लेम्सिया का, ऐसे होगा ना उस पर सर? अंदाजा लगाओगे। दीज आर द कैंडिडेट, दीज आर द कैंडिडेट जिसके अंदर फिर आपको अगर वो बढ़ता जा रहा है तो यू माइट हैव टू ऑफर देम टर्मिनेशन। ओके जो सर। इसकी कंडीशन वर्स हो रही है तो दीज आर द टाइम्स केराटिनिन फिर वगैरह आपने उसको। केराटिनिन वगैरह का रोल है क्या सर प्री इक्लेम्सिया में? अगर पार्ट सपोज पहले से उनका प्रोटीन पहले से ही पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी में हमें कैसे? नहीं बेटा, क्रेटिनिन तो आपका रीनल स्टेटस बता रहा है ना, इट्स नथिंग टू डू विद प्री इक्लेम्शिया। यूरिक एसिड हो सकता है, उसका राइजिंग ट्रेंड ऑफ यूरिक एसिड जो है वो एक डिनोटर है, नॉट द क्रेटिनिन। आई डोंट थिंक सो। क्रेटिनिन तो आपका रीनल फंक्शन बता रहा है। लेकिन इस सारे आरएफटीज अगर हमारे वर्स होते जा रहे हैं, दीज आर ऑल द इंडिकेशन जहाँ पे फिर देन यू हैव टू स्टार्ट अबाउट डिलीवरिंग द बेबी, ताकि पेशेंट की लाइफ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सर एक क्वेश्चन है, fertility will affected by the SLE or not? देखो, अगर उसका मेरा नहीं ख्याल कि जी कि डायरेक्टली एसएलई का कोई इम्पैक्ट ऑन फर्टिलिटी है। उसकी अगर एज ठीक है, हस्बैंड से एनालिसिस ठीक है और कोई और इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आ रही तो आई थिंक वी शुड बी ऑलराइट। मैंने थैंक ये यू। पढ़ा नहीं है फर्टिलिटी का डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ऑन एसएलई या एसएलई का उसके ऊपर, थैंक यू। लेकिन प्लानिंग की जरूरत है। ठीक। ट्यूशन आज की क्लास, इमरान भाई आज है नेक्स्ट सर बेटर एक सेशन? क्लास ही कर दें। नेक्स्ट क्लास ऑन जी सर एप्ला। है सर, प्रोफेसर शहनाज। आ गई मैडम? सर मैडम अभी आने वाली हूँ बस 5 मिनट तक। चलो फिर, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आई बैग लीव, वरना हम नेक्स्ट टॉपिक बता दें। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक, क्लास का टॉपिक। नेक्स्ट क्लास यस का सर। टॉपिक तो इमरान को ही पता होगा। सर वेडनेसडे को पता चलेगा मैम। अच्छा चलो, वेडनेसडे को जी बताएं। मुझे भी एक दिन पहले ही अस्सलाम बता। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर क्वेश्चन अक्सर सिनेरियोज में आता है कि पेशेंट कम्स विद इंसिडेंटल फाइंडिंग ऑफ प्रेगनेंसी, शी इज वेल कंट्रोल्ड ऑन एसएलई ड्रग्स। तो एट दिस पॉइंट हम उसको क्या दोबारा जो उसकी टेट्रोजेनिक ड्रग्स हैं, तो वो हम उसको जो फर्स्ट करें वो आई है 8 वीक्स प्रेगनेंसी पे, तो हम जी उसको दोबारा इनकी को आगे लेके चलेंगे कि जो कि टेट्रोजेनिक ड्रग्स हैं जिसपे वो वेल कंट्रोल्ड है उसको हम स्विच ऑफ करेंगे या उसको टर्मिनेशन ऑफर करेंगे? बेटा, पहले तो जो जो ड्रग्स पे है, अगर तो कोई पेशेंट मेथोट्रेक्सेट पे है और वेल कंट्रोल्ड है और आपके पास 8 वीक्स पे आ जाती है, तो मैं तो आई ऑफर हर के जी बिकॉज ऑफ द नंबर वन, एक तो हम मेथो उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आगे फर्दर, एंड नंबर टू, उसका इशू ये है कि मेथो को अगर हम चेंज करते हैं या उसको किसी और चीज़ पे लेके जाते हैं तो उसकी जो डिजीज़ है वो दोबारा वहाँ से फ्लेयर अप कर जाएगी। तो उन दोनों को देखते हुए उनसे डिस्कस करके फिर आगे चलोगे। ये तो आप 8 वीक्स पे लेके आए हो, चलो ठीक है, लेकिन एक पेशेंट जो है जो 14 वीक्स पे आ जाती है, जो टेट्रोजेनिक पीरियड ऑलरेडी खत्म हो चुका है, अब वो आ गई विद ऑल दीज ड्रग्स, फिर यू देन यू हैव टू डिस्कस विद रोमाटोलॉजिस्ट कि जी क्या हम इसकी दवाई को बंद कर सकते हैं और स्विच ओवर कर सकते हैं हर टू और HCQ जिसके पर वो ठीक रहेगी। वो कहता है जी हम तो मैथो नहीं बंद कर सकते और हम अभी दिस इज नॉट इन अ कंडीशन कि वो करो, क्योंकि ऐसे ली के लिए रिकमेंडेशन जो है
इट्स नॉट ओनली कि मैथो उसने आज बंद की है, मैथो और बाकी सारी दवाइयाँ जो उसकी टेट्रोजेनिक हैं, दे हैव टू बी स्टॉप अबाउट 6 months बिफोर, और 6 महीने के बाद भी जो वो मेडिसिन ले रही है उस पर वो ठीक कंट्रोल पे हो, उसको उसके साइन और सिम्टम्स ना आ रहे हो, प्लस उसकी रीनल स्टेटस ठीक हो, और कोई और एडेड उसकी कॉम्प्लिकेशन ना हो, देन शी इज़ एन आइडियल केस। जो आपके पास प्रेग्नेंट होके आ जाती है और वो है, देन डिसीजन हैज़ टू बी इन्फॉर्म्ड वन, जिसमें आपने उसको एडवाइस करना है, आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे। और उस डिसीजन के अंदर जब आप लेना भी है, इट्स बेटर कि आप जिस तरह वो डालते हो कि जी हम अपनी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम, जिसमें फिजिशियन भी होगा, जिसके अंदर इसका रूमेटोलॉजिस्ट बॉडी देख रहा है, और जिसमें आप एज एन ऑब्स्टिशियन अपना एडवाइस जरूर दे दोगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम मैथो नहीं कंटिन्यू कर सकते, आप अलाउ करते तो फिर हम देख लें। और तीसरा, अगर इसकी कुछ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज आती हैं इसकी, लेट्स सपोज मैथो की भी, वो भी आप 20 वीक्स के ऊपर उसकी डिटेल स्कैन्स और कार्डिक एको की टेस्ट, लेट्स सपोज आप जाते हो तो पता चलता है कि उसकी जेनेटिक कोजेनिटल अनॉमलीज आ गई हैं 20 वीक्स में ऑफ द हार्ट, और जो विच आर अनफॉर्चुनेटली नॉट कंपेटेबल विद लाइफ, फिर उसका हमने सिनारियो क्या करना है, वही पेशेंट को बताना और उसके साथ साथ एक्सप्लेन करना जरूरी। तो ये सारे के सारे सारे मरीज को बैठ के वेल, लेकिन यू आर नॉट द पर्सन हु इज गोना डेफिनेटली से कि नहीं जी आपने तो ये करना ही करना। आप उसके उसके प्रोज, उसके कॉन्स एंड उसको इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग के लिए बताओगे। हाँ, अगर वो आपसे पूछे कि डॉक्टर साहब आप क्या चाहते हैं, कि व्हाट डू यू वांट, फिर आप कहोगे जी फॉर मी ये है, ठीक है अभी आपकी एज इतनी है कि यू कैन ऑलवेज गेट प्रेग्नेंट अगेन, लेकिन लेट्स टेक इट कि फिलहाल के लिए इसको हम ये टर्मिनेट करें, उसके बाद आपकी डिजीज़ का इस तरह मैनेजमेंट करेंगे, और उसके 6 महीने के बाद फिर हम ये करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह देयर इज़ अ गुड चांसेस कि हमारी एक हेल्दी प्रेगनेंसी और जिसमें कॉम्प्लिकेशन और आपके लिए भी सेफ्टी मार्जिन हो। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? जी सर, थैंक यू सर। चलो बेटा, इफ ऑल इज डन देन सी यू नेक्स्ट वीक, एंड उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह देखेंगे। ओके।